Welcome student in computer class. Student, we have covered up to page number 154. Now we will start 155. Inserting and formatting shapes. Shapes are inserted to add visual appeal and clarity to a document. Word allows us to add a variety of shapes to a document, including arrows, callouts, squares, stars, and flow charts symbols. The steps to insert a shape are as follows. Step number 1. Place the cursor at the position where you want to insert the shape. Open the Insert tab and click on the Shapes command button. Step 3. From the Shapes menu, select a required shape. Drag the mouse at the desired position to draw the shapes. As soon as the shapes are drawn, Format tab appears under Drawing Tools, listing a variety of commands button. We can use these commands to modify the shapes, change its outline and fill color, and give it spatial effect, etc. Next step, we can also right click on the shape and select Wrap Text option as square to let the text follows around the shape. Dragging the sizing handles allows us to resize the shape as required. स्टूडेंट, आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप शेप्स अवेलेबल होती हैं एमएस वर्ड में. आप उनमें से कोई भी शेप इंसर्ट करा सकते हैं. अब शेप किस तरह की, जैसे कि आपको चाहिए इस तरह की शेप चाहिए, आप इंसर्ट करा सकते हैं. ओवल शेप चाहिए, इंसर्ट करा सकते हैं. कोई भी शेप चाहिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी शेप्स हैं. आप अपनी बुक में देख सकते हैं और ये इंसर्ट करा सकते हैं. और इनको इंसर्ट क्यों कराते हैं, कहीं हमको ज़रूरत होती है कुछ भी शेप्स लगाने की, तो हम लोग स्क्वायर्स की, स्टार्स की, कहीं भी लगाने की नीड हो जाती है पेज पे, तो हम लोग इंसर्ट करा लेते हैं. इनको इंसर्ट कराने के लिए आपको कहाँ जाना होता है, इंसर्ट टैब में जाना पड़ता है. इंसर्ट टैब में जाके आप क्लिक करते हैं शेप्स वाले ऑप्शन पे. शेप्स ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो आपको ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स आपको दिखाई देती हैं. ये देखिए, आपको जो बुक में पेज नंबर 155 पे ऊपर की तरफ दिख रहा है वो शेप्स सभी होती हैं और उनमें से आप चूज़ कर सकते हैं. और इंसर्ट कराने के लिए बस यही है कि क्लिक करिए और फिर आप इंसर्ट करा सकते हैं. शेप का साइज अगर जो छोटा है, स्मॉल साइज है, तो साइड से जब आप कर्सर ले जाएंगे कॉर्नर पे और तो आप ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो बड़ी हो जाएगी शेप, नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे छोटी हो जाएगी. और इसके साथ ही में क्या कर सकते हैं, आप इसका प्लेसमेंट चेंज कर सकते हैं. ड्रैग एंड ड्रॉप, आप इसको ड्रैग करके दूसरी जगह भी रख सकते हैं. कोई भी शेप है एक जगह से दूसरी जगह भी रख सकते हैं. तो ये हो गई शेप्स की बातें. Inserting symbols and special characters. We often need to insert scientific and mathematical symbols like alpha, unit, 1/2, 3/4, @ and special characters like m dash, n dash, paragraph sign in document. To insert such symbols and special character in MS Word, the steps are as follows. Place the cursor at the position where you want to insert the symbol. Select Symbol button from the Insert tab. From the drop down menu, select More Symbols option. The symbol dialog box will open. To insert a symbol, click on the Symbols tab and double click on the required symbol to insert in the document. To insert a special character, click on the Special Characters tab and double click on the required special character to insert in the document.
When finished, close the dialog box by clicking on the close button. This way you can insert as many symbols and special characters as you want in your document. अब यहाँ पे आपको स्पेशल सिंबल्स या स्पेशल कैरेक्टर्स इंसर्ट कराने हैं स्टूडेंट्स। तो कैसे करेंगे? सिंपल है कि जो कीबोर्ड से हम लोग लेटर्स हैं, सिंबल्स हैं, नहीं बना पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, देन वी हैव टू इंसर्ट फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम, फ्रॉम द इंसर्ट टैब। आप वहाँ से इंसर्ट कराते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है कि ये सिंबल आपको अगर जो कीबोर्ड में नहीं मिल रहा है, या कोई ऐसा कीबोर्ड में सिंबल मान लीजिए नहीं है, बहुत सारे कीबोर्ड में सिंबल क्या होते हैं, नहीं है, तो वो आपको क्या करने होते हैं, इंसर्ट कराने होते हैं। तो इंसर्ट कराने के लिए आप जाते हैं, कहाँ जाते हैं, इंसर्ट टैब में। देखिए कुछ भी इंसर्ट कराना है आपको, चाहे इमेज है या ऑटो शेप्स हैं, तो आप जाते हैं इंसर्ट टैब में। वहाँ पे आपको ऑप्शन देता है सेलेक्ट सिंबल बटन। सिंबल बटन का ऑप्शन होता है। सिंबल बटन ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको सिंबल्स दिखाई देते हैं। आप मोर सिंबल ऑप्शन पे क्लिक करके और भी सिंबल्स देख सकते हैं। अगर जो आप वहीं पे कैरेक्टर्स इनपुट करना चाहते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो आप इनपुट नहीं करा पा रहे हैं, तो कैरेक्टर्स को इनपुट करने के लिए साइड में ही आप देखेंगे सिंबल्स के बटन होती है ऊपर की तरफ। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो सिंबल्स आपको कैरेक्टर्स दिख जाएंगे। तो कैरेक्टर्स देखने हो तो कैरेक्टर्स पे, सिंबल्स देखने हो तो सिंबल्स पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करके फिर आप क्लिक करेंगे इंसर्ट पे, और आपका जो माउस है, कर्सर क्या है, उसी जगह पे होना चाहिए जहाँ, जिस जगह पे आप वो इंसर्ट कर रहे हैं, जहाँ आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो कैरेक्टर या सिंबल, जहाँ पे आपको नीड है। अगर जो आपका कर्सर कहीं और होगा तो वो वहीं पे इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। इंसर्ट कराने के बाद आप बाहर आ सकते हैं क्रॉस बटन से। क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग टेबल्स। सबसे पहले स्टूडेंट हमको देखना चाहिए कि टेबल्स होती क्या है। टेबल्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स क्या जो सेट होता है उनको बोलते हैं टेबल। यस, ये क्या है, ये रोज हैं, और जो इस तरीके के हैं ये क्या हैं, कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स, और जो इंटरसेक्शन रोज एंड कॉलम्स हैं, जैसे कि ये सब क्या है, सेल है। इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स कॉल्ड सेल। तो सेल है। क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग टेबल्स। अब कैसे क्रिएट करते हैं MS वर्ड में देख लेते हैं। अ टेबल इज अ ग्रिड ऑफ सेल्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। Tables are used in document to organize text, numbers, or graphical information in a concise and organized manner. Let us learn to create and manipulate tables in a document. और टेबल का यूज़ क्यों करते हैं? कुछ भी हमको ऑर्गेनाइज मैनर में इंफॉर्मेशन शो करनी है। जैसे आपको अपने मार्क्स या अपनी क्वालिफिकेशन, बायोडेटा बना रहे हैं, शो करना है, तो आप एक टेबल बना लेंगे, उसमें लिख देंगे हम आपकी क्लास, ईयर, परसेंटेज, इस तरीके से एक टेबल के रूप में बना सकते हैं जो आप शो करना चाहते हैं। तो ये क्या रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा। इंसर्टिंग अ टेबल इन MS वर्ड यू कैन क्रिएट सिंपल और रेगुलर टेबल्स विथ ऑल रोज एंड कॉलम्स ऑफ सेम हाइट एंड विड्थ यूजिंग द टेबल कमांड अंडर इंसर्ट टैब, or create complex table that contain cells different heights, varying number of columns per row using the draw table option in the table button menu. Steps to insert a regular tables are follows. Position the cursor at the place where table is to be inserted. Open the insert tab and click table button in the
tables group. A menu will drop down showing you different options to insert a table. To create a table using the graphic grid in the menu, move mouse pointer to highlight the required number of columns and rows and columns and click once. The table will get inserted. To insert table using the insert table option, just click on this option in the table drop down menu. The insert tab dialog box will open. Insert the number of rows and columns in the relevant boxes. In auto fit behaviors section, enable the fixed column with option. Click on the OK button. The table will specify number of rows and column will get inserted in the document. क्या करना है, इंसर्ट में जाना है आपको, इंसर्ट मेनू में, क्योंकि क्या करना है, टेबल इंसर्ट करानी है। तो आप इंसर्ट टैब पे क्लिक कर देंगे। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद आप जाएंगे, क्लिक करेंगे टेबल बटन पे, टेबल बटन पे क्लिक कर देंगे। टेबल बटन पे क्लिक करेंगे तो एक आपको मेनू अपीयर हो जाएगा, ड्रॉप डाउन मेनू आप देख सकते हैं। इस तरह का मेनू अपीयर हो जाएगा, जहाँ पे आप नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज़ लिख देंगे। रोज़ का मतलब ये लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल और कॉलम्स, ये आपको दिखाई देंगे। जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं रोज़ एंड कॉलम, वो आप इंसर्ट करा सकते हैं। तो टेबल आप इंसर्ट कराने के लिए नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दे सकते हैं। और जब ये दे देंगे उसके बाद क्या करना होगा, आपको फिक्स्ड कॉलम विद, तो ऑटो रख दीजिए। ये कॉलम विद क्या है, ये अपने आप एडजस्ट कर लेगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, ओके कर देना। और माउस का कर्सर, कीबोर्ड कर्सर आपको उसी पोजीशन पे रखना है जहाँ पे टेबल इंसर्ट करनी है। टेबल में जितने रोज़ आपने दिए होंगे, जितने कॉलम्स दिए होंगे, वो टेबल इंसर्ट हो जाएगी। आपको प्लेसमेंट चेंज करना है जो टेबल का, तो आपको कॉर्नर पे माउस ले जाना होता है। वहाँ पे प्लस का सिंबल इस तरीके का कॉर्नर पे बनेगा, तो ड्रैग कर सकते हैं और ड्रॉप कर सकते हैं माउस से। साइज बढ़ाना है तो आप फिर से कॉर्नर पे ले जाएंगे, जैसे मैंने बताया था ऑटो शेप का। साइज ऊपर की तरफ खींचेंगे, बड़ा होगा, नीचे की तरफ करेंगे तो स्मॉल होगा। आप ड्रैग एंड ड्रॉप से इधर से उधर कर सकते हैं टेबल, और टेबल का साइज भी बढ़ा सकते हैं। कॉर्नर से खींच के आप कॉर्नर पे ड्रैग करेंगे पकड़ के, तो वो क्या होगा, टेबल का साइज बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जैसे आप इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाई विद द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द टेबल, यू नीड टू ऐड सम मोर, तो आप ऐड भी कर सकते हैं। और इफ़ यू वांट टू डिलीट, तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं टेबल को। तो स्टूडेंट, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।